प्यारे बच्चों, मैं उपमा केमिस्ट्री लेक्चरर सरकारी सीनियर सैकेंडरी स्कूल अमलो लड़के फतेहगढ़ साहब बेटा अज मैं तुहाडे सारिਆਂ ਦਾ केमिस्ट्री क्लास ਦੇ ਵਿੱਚ स्वागत करती हाँ। ਜਿਹੜਾ चैप्टर ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਪੜਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਕੈਮੀਕਲ ਕਾਇਨੈਟਿਕਸ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹ ਜਾਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕੈਮੀਕਲ ਕਾਇਨੈਟਿਕਸ ਕੀ ਹੈ। बेटा ਇਹ ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਦੀ ਉਹ ਬ੍ਰਾਂਚ ਹੈ ਜਿੰਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਰੇਟ ਆਫ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਟੱਡੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਫੈਕਟਰਸ ਅਫੈਕਟਿੰਗ ਰੇਟ ਆਫ ਰਿਐਕਸ਼ਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ बेटा ਆਪਾਂ ਮੈਕੈਨਿਜ਼ਮ ਆਫ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਵੀ इसी ब्रांच ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੱਡੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। So once again, what is chemical kinetics? It is the branch of chemistry that deals with rate of reaction, factors affecting rate of reaction and mechanism of reaction. बेटा rate तो आम तौर पे बच्चे confuse हो जाते हैं। Rate is nothing special. Rate का मतलब ਹੁੰਦਾ है जिਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਆਮ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ speed ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ कि कोई रिएक्शन स्लो हो रही है या कोई रिएक्शन फास्ट हो रही है। ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਫੈਕਟਰਸ ਉਸ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਦੀ ਸਪੀਡ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਦਾ ਪਾਥ ਕੀ ਹੈ, ਕਿਸ ਰਸਤੇ ਤੇ ਚੱਲ ਕੇ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਸੰਭਵ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਫੈਕਟਰਸ ਦੀ ਕਲੈਕਟਿਵ ਸਟੱਡੀ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਦੀ ਜਿਸ ਬ੍ਰਾਂਚ ਵਿੱਚ ਸਟੱਡੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕੈਮੀਕਲ ਕਾਇਨੈਟਿਕਸ। ਤਾਂ ਬੇਟਾ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੈਮੀਕਲ ਕਾਇਨੈਟਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਾਈਪਸ ਆਫ ਕੈਮੀਕਲ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਸਟੱਡੀ ਕਰਨੇ ਹੈ ਅਕॉर्डिंग टू रेट। मतलब रेट ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕੈਮੀਕਲ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਕਿੰਨੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬੇਟਾ ਕੈਮੀਕਲ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਰੇਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਤਿੰਨ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਵੈਰੀ ਫਾਸਟ ਰਿਐਕਸ਼ਨ, ਵੈਰੀ ਸਲੋ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਐਂਡ ਮੋਡਰੇਟ ਰਿਐਕਸ਼ਨਸ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੇਟਾ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੈਰੀ ਫਾਸਟ ਰਿਐਕਸ਼ਨਸ। ਨਾਮ ਤੋਂ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਰਿਐਕਸ਼ਨਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਛੇਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੈਮੀਕਲ ਰਿਐਕਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਹੋਣ ਤੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸਮਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਰਿਐਕਸ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਟਾ ਆਇਨਿਕ ਕੰਪਾਊਂਡਸ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਇਨਵੋਲਵਡ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਫॉर एग्जांपल AgNO3 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ NaCl ਪਾਉਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ NaNO3 ਔਰ AgCl ਦੇ ਵਾਈਟ ਪ੍ਰੈਸਿਪਿਟੇਟ ਇੱਕਦਮ ਪ੍ਰੈਸਿਪਿਟੇਟ ਆਊਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਹ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਹੋਣ ਨੂੰ ਬੇਟਾ ਫ੍ਰੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਸੈਕਿੰਡਸ ਲੱਗਦੇ, ਯਾਨੀ 10⁻⁻12 ਸੈਕਿੰਡ ਜਿੰਨੇ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਰਿਐਕਸ਼ਨਸ ਦੀ ਸਟੱਡੀ ਕਰਨ ਦਾ ਕੈਮੀਕਲ ਕਾਇਨੈਟਿਕਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਲੌਜਿਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਸੈਕਿੰਡ ਕੈਟੇਗਰੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਵੈਰੀ ਸਲੋ ਰਿਐਕਸ਼ਨ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਸਟੱਡੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਬੇਟਾ ਆਇਰਨ ਦੀ ਜੰਗਾਲ ਲੱਗਣਾ, ਆਇਰਨ ਦੀ ਰਸਟਿੰਗ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਨੂੰ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਆਇਰਨ ਨੂੰ ਜੰਗਾਲ ਓਵਰਨਾਈਟ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਇਟ ਟੇਕਸ ਸੋ ਮੈਨੀ ਟਾਈਮ ਪੀਰੀਅਡ, ਸੋ ਮੈਨੀ ਇਅਰਸ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਰਿਐਕਸ਼ਨਸ ਦੀ ਵੀ ਮੈਕੈਨਿਜ਼ਮ ਵਗੈਰਾ ਨੂੰ ਸਟੱਡੀ ਕਰਨਾ ਕੈਮੀਕਲ ਕਾਇਨੈਟਿਕਸ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਵਿਊ ਨਾਲ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੈਮੀਕਲ ਕਾਇਨੈਟਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਤੀਸਰੀ ਕੈਟੇਗਰੀ ਦੀਆਂ ਰਿਐਕਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਹੀ ਸਟੱਡੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਮੋਡਰੇਟ ਰਿਐਕਸ਼ਨ। ਇਹ ਉਹ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਾਸਟ ਹੈ ਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਲੋ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਣ ਤੇ ਕੁਝ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਸਮਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੰਫਰਟੇਬਲੀ ਮੈਜ਼ਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਫॉर एग्जांपल ਡੀਕੰਪੋਜੀਸ਼ਨ ਆਫ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਪੈਰੋਕਸਾਈਡ, H2O2 ਡੀਕੰਪੋਜ਼ ਹੋ ਕੇ ਵਾਟਰ ਔਰ ਆਕਸੀਜਨ ਗੈਸ ਲਿਬਰੇਟ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਹੋਣ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਸਮਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਮੈਜ਼ਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਕੈਮੀਕਲ ਕਾਇਨੈਟਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਟਾ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਸਟੱਡੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਰੇਟ ਆਫ ਰਿਐਕਸ਼ਨ। ROR ਆਪਾਂ ਕਨਵੀਨੀਐਂਟਲੀ ਇਹਨੂੰ ਸ਼ਾਰਟ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਵਾਟ ਇਜ਼ ਰੇਟ ਆਫ ਰਿਐਕਸ਼ਨ? ਬੇਟਾ ਕੰਸੈਂਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਰਿਐਕਟੈਂਟਸ ਜਾਂ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੇਂਜ ਹੋ ਰਹੇ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਉਸ ਚੇਂਜ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਰੇਟ ਆਫ ਰਿਐਕਸ਼ਨ। ਬਟ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਫਲਾਸਕ ਜਾਂ ਬੀਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਰਿਐਕਟੈਂਟਸ ਪਾਏ ਤੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਦੀ ਕੰਸੈਂਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਿੰਨੀ ਹੋਏਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਲ ਤੱਕ ਰਿਐਕਟੈਂਟ ਰਿਐਕਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਤਾਂ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਦੀ ਕੰਸੈਂਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਜ਼ੀਰੋ ਹੋਏਗੀ। ਜੋ ਵੀ ਕੰਸੈਂਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਰਿਐਕਟੈਂਟਸ ਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਰਿਐਕਟੈਂਟ ਆਪਸ 'ਚ ਮਿਕਸ ਕਰਤੇ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਦੇਤੀਆਂ ਤਾਂ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਐਜ਼ ਅ ਰਿਜ਼ਲਟ ਰਿਐਕਟੈਂਟਸ ਦੀ ਅਮਾਊਂਟ ਹੌਲੀ 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 ਘਟੇਗੀ ਤੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਦੀ ਅਮਾਊਂਟ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਵਧੇਗੀ। ਤਾਂ ਰਿਐਕਟੈਂਟ ਦੀ ਅਮਾਊਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਚੇਂਜ ਆਈ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਦੀ ਅਮਾਊਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਚੇਂਜ ਆਈ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਸ ਚੇਂਜ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਰੇਟ ਆਫ ਰਿਐਕਸ਼ਨ। ਫॉर एग्जांपल कोई रिएक्शन ਆਪਾਂ ਜਨਰਲ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਰੇਟ ਆਫ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਇਸ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ ਕਿਵੇਂ ਸਟੱਡੀ ਕਰਾਂਗੇ?
reactants represented by R are converted into products. देखो बेटा जो टाइम 0 सेकंड है, मान लो आप इत्थे दे 100 मॉलिक्यूल 100 मोल व्हाटएवर 100 रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स है, समा है 0 सेकंड यानी रिएक्शन शुरू नहीं हुई, प्रोडक्ट कितने होंगे 0। मान लो फॉर एग्जांपल 2 सेकंड के बाद रिएक्टेंट्स चों कुछ रिएक्टेंट टूट के प्रोडक्ट बन गए, रिएक्टेंट्स रह गए 90, प्रोडक्ट्स बन गए 10। थर्ड सेकंड ते की होया, रिएक्टेंट्स होर घट गए ते प्रोडक्ट्स होर वध गए। ग्रैजुअली होर 3-4 सेकंड दे विच रिएक्टेंट्स टोटली खत्म होने वाल जाणगे ते प्रोडक्ट्स टोटली बनन वाल जाणगे। इस दे अनुसार जे इत्थे आपां देखिए टाइम दी कितनी चेंज आई 2 - 0, चेंज इन टाइम 2 सेकंड। रिएक्टेंट्स दी अमाउंट च कितनी चेंज आई 10 मॉलिक्यूल्स। So delta represents change. Rate of reaction is delta R upon delta T. Delta R का मतलब 90 - 100 -10 आ गया बेटा, -10 और टाइम भी कितनी चेंज है बेटा जी 2 सेकंड, डेल्टा T 2 सेकंड्स। बेटा इत्थे जिहड़ा अपना -10 आ रहा है, रेट कदे भी माइनस नहीं हो सकती, इस माइनस नू इस माइनस दे नाल नलीफाई कर दिन्ने आपां तां ये बन जाता है प्लस। याद रखो रेट ऑफ रिएक्शन ऑलवेज हैज अ पॉजिटिव साइन। प्रोडक्ट्स के केस च की हो रहा है बेटा जी, समय दे नाल नाल प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशन वध रही है, तां इत्थे आपां नू नेगेटिव पाउण दी कोई जरूरत नहीं है। 20 दे विचों 10 माइनस करांगे या 10 चों 0 माइनस करांगे, इत्थे पॉजिटिव वैल्यू ही आएगी ते समा जिहड़ा है दैट इज ऑलवेज पॉजिटिव चेंज इन टाइम। तां आपां ROR दी डेफिनेशन चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स अपॉन चेंज इन टाइम विद अ नेगेटिव साइन, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स अपॉन चेंज इन टाइम विद अ पॉजिटिव साइन। आपां एक जनरल रिएक्शन कंसीडर करते हैं बेटा, AA plus BB gives rise to CC and DD। बेटा जिहड़े स्मॉल अल्फाबेट्स हैं they are representing stoichiometric coefficients। हुण इस रिएक्शन दे लई एक जनरल रिएक्शन दे लई जे आपां रेट ऑफ रिएक्शन लिखनी होवे तां इट विल बी -1 upon A, डेल्टा दा मतलब चेंज, चेंज इन स्क्वायर ब्रैकेट दा मतलब कंसंट्रेशन, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट A अपॉन चेंज इन टाइम। बेटे बिल्कुल ही ये इक्वल होगी, रेट ऑफ रिएक्शन इज ऑल्सो इक्वल टू -1 upon B, change in concentration of B upon change in time, equal to 1 upon C, change in concentration of C upon delta T, equal to 1 upon D, change in concentration of D upon delta T। I hope this is clear। बेटा rate of reaction आपां दो नामां दे नाल अंडर 2 separate headings डिस्कस करते हैं। एक है एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, दूसरी है इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। बेटा इन्हां दे नाम तो ही पता लगता है कि एवरेज और इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन का की मतलब है। जिमें ਤੁਸੀਂ क्रिकेट ਦੇ ਵਿੱਚ एवरेज रन स्कोर की गल करते हो कि पहली बॉल ते सिक्सर पिया, दूसरी बॉल ते कोई रन नहीं होया, तीसरी बॉल ते 2 रन हुए, लाइक कि पूरे ओवर दे विच एवरेज रन रेट की सी। ते इंस्टेंटेनियस रन रेट का मतलब की है कि पर्टिकुलर बॉल ते कितना स्कोर अचीव होया। बिल्कुल उसी तरीके नाल पूरी रिएक्शन दे विच कोई 2 टाइम इंटरवल्स दे विचकार टोटल चेंज कितनी आई रिएक्टेंट्स दी, जे आप डिस्कस कर रहे हैं तो आप रेट ऑफ रिएक्शन कहांगे एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। तो जे आप किसी पर्टिकुलर कि लाइक दूसरे सेकंड ते या तीसरे सेकंड ते कितनी रेट ऑफ रिएक्शन सी उन्होंने आप कहांगे इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड हाउ टू राइट एक्सप्रेशंस फॉर दीज 2 टाइप्स ऑफ रेट ऑफ रिएक्शंस। फॉर एग्जांपल एज वी हैव डिस्कस्ड अर्लियर ऑल्सो कि एक जनरल रिएक्शन लिखती है A plus BB gives rise to CC and DD। बेटे जे आपां एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन लिखनी है तो इनका एक्सप्रेशन आपां पहला भी लिख चुके हैं। रिएक्टेंट्स दे लई नेगेटिव साइन लवांगे, आपां स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स नू 1 नाल डिवाइड करांगे
डेल्टा का मतलब हुंदा है चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन, स्क्वायर ब्रैकेट मीन्स कॉन्सेंट्रेशन। सो एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन दे विच पहला एक्सप्रेशन बनेगा अपने कोले -1/a चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू टाइम। दूसरा इनू ਆਪਾਂ इस टर्म च भी लिख सकते हैं, जब b दी टर्म्स विद रिस्पेक्ट टू b लिखना होवे -1/b चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ b अपॉन चेंज इन टाइम। जे c दे रिस्पेक्ट च लिखना होवे ਤਾਂ इस तरीके नाल, ते जे d दे रिस्पेक्ट च लिखना होवे तो 1/d डेल्टा change in concentration of B upon delta time, change in time। इसी चीज ਨੂੰ बेटे ਆਪਾਂ instantaneous rate of reaction form ਚ ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ बेटे। ਜੇ delta t approaches 0 ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਟਾਈਮ ਚੇਂਜ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਦੂਸਰੇ ਸੈਕਿੰਡ ਤੋਂ ਤੀਸਰਾ ਸੈਕਿੰਡ, ਉੱਥੇ delta t is 1। सपोज टाइम 0 तो लेके टाइम 5 सेकंड, उत्थे चेंज इन टाइम पीरियड इज 5 सेकंड्स। इफ दिस चेंज रिड्यूसेस टू 0 मतलब 3.1 सेकंड तो 3.15 सेकंड, द डेल्टा टी चेंज इन टाइम अप्रोचेस टू 0। उस सिचुएशन दे विच बेटा मैथमेटिकली असी डेल्टा टी नू डिफरेंशियल ऑफ टी दे नाल डेजिग्नेट करते हैं ते चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ एनी रिएक्टेंट आर डेल्टा आर नु आपां डी डिफरेंशियल ऑफ कंसंट्रेशन, स्क्वायर ब्रैकेट मींस कंसंट्रेशन ऑफ आर। हुन इसी सारी चीज नु बेटे -1/a -1/a डेल्टा दी थां ते तुसी ध्यान नाल नोटिस करो डी आ गया, इहदा मतलब डिफरेंशियल। सारियां थावां ते इफ यू विल नोटिस डेल्टा इज रिप्लेस्ड बाय डी डिफरेंशियल टर्म, सारियां थावां ते यू कैन नोटिस इट। सो एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन और इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन ਜਿਹੜੀਆਂ है, एवरेज मीनस ओवरऑल रिएक्शन ਦੇ ਦੋ टाइम पीरियड्स ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਕਿੰਨੀ ਚੇਂਜ ਇਨ ਕਨਸੈਂਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੋਈ ਹੈ। इंस्टेंटेनियस मीनस ਕਿਸੇ ਸਮਾਲ ਟਾਈਮ ਚੇਂਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਇਨਸਟੈਂਟ ਆਫ ਟਾਈਮ ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਚੇਂਜ ਇਨ ਕਨਸੈਂਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੋਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਬੇਟੇ पेपर ਦੇ ਵਿੱਚ जनरल रिएक्शन ਦੀ ਬਜਾਏ न्यूमेरिकल्स आने ਆਪਾਂ उस पॉइंट ऑफ व्यू ਨਾਲ ਲਿਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। अपने को एक रिएक्शन है 2N2O5 इट गिव्स राइज टू 4NO2 प्लस O2। ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ ਕਿ ਇਹਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਦੋਨੋਂ ਸ਼ਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਵਰੇਜ ਰੇਟ ਆਫ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਵੀ ਤੇ ਇਨਸਟੈਂਟੇਨੀਅਸ ਰੇਟ ਆਫ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਵੀ ਲਿਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਬੇਟੇ, ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਵੀ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਐਵਰੇਜ ਰੇਟ ਆਫ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਦੇ ਲਈ ਇੱਥੇ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਲਿਖਤਾ ਹੈ। You can see N2O5 ਦਾ stoichiometric coefficient 2 है। सब तो पहला reactant है, इस करके अपन नेगेटिव साइन लगाया, 1/2 stoichiometric coefficient ਇੱਥੇ ਆ ਗਿਆ। Change in concentration of N2O5 upon change in concentration of time। ਤੇ ਜੇ ਆਪਾਂ NO2 ਦੀ ਟਰਮ ਚ ਰੇਟ ਲਿਖਣੀ ਹੋਵੇ ਬੇਟਾ ਜੀ, then this is a product, so ਇੱਥੇ ਮਾਈਨਸ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ। 1 upon stoichiometric coefficient 4 change in concentration of NO2 upon change in time। जे O2 ਦੀ ਟਰਮ ਚ ਲਿਖਣੀ ਹੋਵੇ ਬੇਟਾ delta O2 upon delta T। ਹੁਣ ਪੁੱਤਰ ਜੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਇਹਨੂੰ ਇੰਸਟੈਂਟੇਨੀਅਸ ਰੇਟ ਆਫ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਚ ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕਿਵੇਂ ਲਿਖਾਂਗੇ, ਕੀ ਚੇਂਜ ਆਏਗੀ ਬੇਟਾ, ਸਿਰਫ ਆ ਡੈਲਟਾਸ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਆਪਾਂ D ਲਿਖ ਦੇਣਾ ਹੈ। what we will do, we will convert it into डिफरेंशियल्स। आ मैं एक एक्सप्रेशन इत्थे लिखिया है -1/2 डिफरेंशियल ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ N2O5 अपॉन डिफरेंशियल ऑफ टाइम। लाइकवाइज 1/4 डिफरेंशियल ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ NO2 अपॉन डिफरेंशियल ऑफ टाइम एंड डिफरेंशियल ऑफ O2 अपॉन डिफरेंशियल ऑफ टाइम। तो बेटा हुण आपां नूं रेट ऑफ रिएक्शन दी डेफिनेशन सारे बच्चों को ये चीज़ पता है कि चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट या प्रोडक्ट अपॉन चेंज इन टाइम। इनके अनुसार बेटे यूनिट्स की होंगे रेट ऑफ रिएक्शन दे। यूनिट्स ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन विल बी कंसंट्रेशन के यूनिट्स होंगे बेटा मोल पर लीटर, टाइम के यूनिट होंगे सेकेंड्स, मिनट्स, ईयर्स, वटएवर। तो इनू कुल मिला के यूनिट इनके बने मोल पर लीटर पर सेकेंड। ते जे बेटा अपने रिएक्टेंट या प्रोडक्ट्स गैशियस स्टेट दे विच होण तां फिर उत्थे आपां
चेंज इन कंसनट्रेशन नहीं लेंदे, उत्थे आपां चेंज इन प्रेशर लैंदे हैं। सो यूनिट्स विल बी एटमॉस्फेयर पर सेकेंड। नाउ नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। बेटा जे हुण आपां रेट ऑफ रिएक्शन नूं रिप्रेजेंट करना होवे, समय दे नाल रिएक्टेंट घट रहे हैं या वध रहे हैं? ऑब्वियसली समय दे नाल रिएक्टेंट्स घट रहे हैं ते प्रोडक्ट्स वध रहे हैं। हुण देखो छोटे जे ग्राफ दे विच मैं तुहानूं रिएक्टेंट दे अनुसार ते प्रोडक्ट दे अनुसार ग्राफ रिप्रेजेंट कीते हैं। रिएक्टेंट्स जिद्दां जिद्दां समा टाइम जिद्दां जिद्दां बीतेगा रिएक्टेंट दी अमाउंट घटेगी, नीचे वाल नूं स्लोप आएगी, और जिवें जिवें समा वधेगा उवें उवें प्रोडक्ट दी अमाउंट वधेगी। सो दीज आर द कर्व्स। जे बेटे आपां इन जनरल रिप्रेजेंट करना होवे ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਰਿਐਕਟੈਂਟ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਘਟਦੇ हैं, ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਵਧਦੇ हैं। ਇਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਆਪਾਂ ਟਾਈਮ ਲਿਆ ਤੇ ਇਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਆਪਾਂ ਕਨਸੈਂਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਿਆ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਵ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਾਂ ਗ੍ਰਾਫਿਕਲੀ ਰੇਟ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਫੋਕਸ ਹੈ ਬੇਟਾ that is graphical representation of average rate of reaction and graphical representation of instantaneous rate of reaction। आप सिर्फ रिप्रेजेंट ही नहीं करना, आप कैलकुलेट भी करना है। हुण फॉर एग्जाम्पल आपां नूं एक डाटा दिता गया है कि कोई रिएक्शन है वो कुल मिला के 40 मिनट दे विच हो रही है, तो जिहड़े कंसनट्रेशन दे विच चेंजेस है वो 0.02 तो लैके अगे 0.14 तक मोल पर लीटर तक ये कंसनट्रेशन चेंज हो रही है। रिएक्टेंट की गल कर रहे हैं आपां, कंसनट्रेशन ग्रैजुअली समय के नाल नाल घट रही है। हुण तुहानूं दिते गए ग्राफ तो दिते गए डाटा तो न्यूमैरिकल पूछा जाता है बेटा कि दसो 10वें ते 20वें सेकंड टाइम इज इक्वल टू 10 सेकंड और टाइम इज इक्वल टू 20 सेकंड के दौरान एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन की सी। आपां इस स्लोप दे ऊपर, इस कर्व के ऊपर 10 सेकंड 10 मिनट डॉट्स के नाल पॉइंट लगा लिया ए, 20 मिनट वाले टाइम T2 दे डॉट लगा लिया B। हुण A दे सामने y एक्सिस ते कंसनट्रेशन कितनी है 0.1 और 20 मिनट ते B पॉइंट दे सामने कंसनट्रेशन है 0.06। चेंज इन कंसनट्रेशन कितनी आई 0.06 माइनस 0.1, 0.06 माइनस 0.10। टाइम दे विच कितनी चेंज आई 20 माइनस 10। ਤਾਂ अपने को जिहड़ी वैल्यू है बेटा माइनस नाल माइनस कट्टिया जाएगा, माइनस 0.04 आया, माइनस दे नाल माइनस कट्टिया गया, इत्थे आ गया अपने को 0.04 अपॉन 10 ते वैल्यू कितनी बन गई, आंसर कितना आ गया 0.004 मोल पर लीटर पर मिनट। दिस वाज एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन फॉर दिस डाटा between intervals time T1 10 minutes, T2 20 minutes। अच्छा बेटा जे तुहानूं कहा जाए कि पर्टिकुलर इंस्टेंट दसो 20वें मिनट ते 20th मिनट ते कितनी रेट ऑफ रिएक्शन सी। व्हाट वी विल डू, आपां वही कर्व फिर यही कर्व बेटा एज सच इत्थे 20th मिनट ते एक पॉइंट लगा लिया, से पॉइंट A। इस पॉइंट ते बेटा आपां टेंजेंट ड्रॉ करांगे। टेंजेंट ड्रॉ करांगे तो इस टेंजेंट का एक्सट्रीम जिहड़ा कंसनट्रेशन वाली टर्म ते जा रहा है दैट इज 0.115 मोल पर लीटर, और जिहड़ा नीचे टाइम पीरियड वाल जा रहा है दैट इज 52.5। सो आपां रेट ऑफ रिएक्शन इंस्टेंटेनियस कैलकुलेट करनी है, डिफरेंशियल वैल्यूज देखनी है, रिएक्टेंट दी कॉन्सेंट्रेशन कितनी है आपां ग्राफ तो देख लिया टेंजेंट दे थ्रू 0.115, और टाइम देना है वो एक्स एक्सिस तो आपां नूं टेंजेंट दे थ्रू पता लग गया दैट इज 52.5 मिनट्स। तो 20th मिनट ते 20वें मिनट ते बेटा आंसर आया अपने को रेट ऑफ रिएक्शन इंस्टेंटेनियस का 0.0022 मोल पर लीटर पर मिनट। तो तुसीं इत्थों दे दोनों ग्राफ्स के थ्रू कंपैरिजन कर सकते हो बेटा जी कि जे आपां एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन लैने तो दो इंटरवल्स दे विचकार है, ते जे इंस्टेंटेनियस
रेट ऑफ रिएक्शन देख रहे हैं तो किसी एक पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम दी रेट ऑफ रिएक्शन है। आई होप ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ डिफरेंसेस क्लियर हो गए होंगे बेटा। बेटा अपना अगला कंसेप्ट है कि किसी भी जनरल रिएक्शन ਦੇ ਵਿੱਚ रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ प्रोडक्ट्स या रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ रिएक्टेंट्स। बेटा आप ਇਹਦੇ ਚ रेट ऑफ रिएक्शन स्टडी कर चुके हैं। सो दिस इज अ पार्ट ऑफ that old concept. Let us consider a general reaction where two reactants A and B वो react करके बना रहे हैं C। C दे कितने मोल्स बन रहे हैं 2। स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट इज 2। पुत्र इनू देख के इस रिएक्शन ਨੂੰ देख के ही पता लगता है कि जिस गति नाल A ते B गायब हो रहे हैं डिसअपीयर हो रहे हैं वो सेम है। A ਦੀ डिसअपीयरेंस रेट इज इक्वल टू B ਦੀ डिसअपीयरेंस रेट, पर C दुगनी स्पीड ते अपीयर हो रहा है। वी कैन से रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ A इज इक्वल टू रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ B एंड रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ C इज ट्वाइस द रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ A। सो ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ इन्हां शब्दों के विच कन्फ्यूज ना होइए, इस करके आप सीधा फॉर्मूला याद करते हैं कि किसी भी दिती गई रिएक्शन तो रिएक्टेंट की डिसअपीयरेंस या प्रोडक्ट की अपीयरेंस का स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट के नाल कोई संबंध ही नहीं रखना। आप सिंपली चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन चेंज इन टाइम। सो फॉर दिस रिएक्शन रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ A इज डेल्टा A अपॉन डेल्टा T। Rate of disappearance of B delta B upon delta T। Rate of appearance of C is delta C upon delta T। ਹੁਣ कोई एक रिएक्शन ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਖ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। For example 4 ammonia they combine with 5 oxygens to produce 4 NO plus 6 water। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ rate of reaction ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖਣੀ ਆਂਦੀ ਹੈ। रेट ऑफ रिएक्शन का एक्सप्रेशन स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स दे नाल होएगा, माइनस का साइन रिएक्टेंट्स दे लिए होएगा। -1/4 डेल्टा अमोनिया दे लिए चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ अमोनिया अपॉन चेंज इन टाइम। अगेन माइनस साइन रिएक्टेंट है ऑक्सीजन, -1/5 चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन अपॉन चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ टाइम। प्रोडक्ट्स की शक्ल दे विच जे रेट ऑफ रिएक्शन लिखना है तो 1/4 change in concentration of NO upon change in time। ते जे H2O ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ rate of reaction ਲਿਖਣਾ ਹੈ ਤਾਂ 1/6 change in concentration of water upon change in time। ਹੁਣ ਬੇਟੇ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਸਵਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ rate of reaction ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ rate of appearance of NO ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, rate of appearance of NO, ਤਾਂ you should be able to write change in concentration of NO upon change in time। Similarly, जे तुहाडे कोल पूछा जाता है rate of disappearance of O2, we can write delta O2 upon delta time। Similarly, can you write for rate of appearance of water? It will be delta H2O upon delta T। Similarly, can you write for rate of disappearance of ammonia? What it will be? It will be delta change in concentration ammonia upon change in time। बेटा एक चीज का ध्यान रखना है कि रेट दे एक्सप्रेशन च आपां माइनस साइन लैने हैं, स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट लैने हैं, पर जदों आपां रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ प्रोडक्ट या रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ रिएक्टेंट देना है तो उत्थे ना तो आपां माइनस प्लस साइन लैना है ते ना ही आपां स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट नू इन्वॉल्व करना है। सो कभी भी तुसी रेट ऑफ डिसअपीयरेंस या रेट ऑफ अपीयरेंस लिखनी है, माइंडेड कोई माइनस या प्लस का साइन नहीं आना, कोई स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट नहीं आना। हुण बेटे अज दे दिन च आपां जो जो टॉपिक्स पढ़े हैं उन्हां दी न्यूमेरिकल्स की शक्ल च पूछे जाने वाले कुछ एग्जाम्पल्स आपां हुण स्टडी करते हैं। इन्हां क्वेश्चंस के दौरान इन्हां न्यूमेरिकल्स नूं सॉल्व करते समय जो अज आपां पढ़े हैं अपना वो टॉपिक पूरा रिवाइज भी हो जाएगा। सो एक क्वेश्चन तुहाडे सामने बोर्ड पे लिखा हुआ है
ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਪੜੋ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਇਹਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ, ਨਾਲ ਮੈਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਲ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। क्वेश्चन है N2O5 ਦੀ ਡੀਕੰਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੈ। N2O5 ਟੁੱਟ ਕੇ NO2 ਤੇ O2 ਚ ਕਨਵਰਟ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ, ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ if rate of appearance of NO2 is 2 mole per liter per second, ਕਿ NO2 ਹਰ ਸੈਕਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਮੋਲ ਦੀ ਸਪੀਡ ਨਾਲ ਅਪੀਅਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਪਾਂ फाइंड आउट करनी है दो चीज़ा, पहली है रेट ऑफ रिएक्शन, दूसरा है रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ N2O5। बेटे थोड़ा जा 1-2 सेकंड का जो तुसी दिमाग लगाओगे तो ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਕੀ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਲਿਖੀਏ रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ NO2। ये ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ बेटा कि अपने कोले फॉर्मूला की है उनका delta NO2 upon delta time, and we have been given in the value अपने को ले कितनी है 2 mole per liter per second। अच्छा ਹੁਣ ਆਪਾਂ rate of reaction, बेटे rate of reaction लिखन दे ਲਈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ कि product ਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ minus sign नहीं ਲਾਂਦੇ। So this is rate of reaction in terms of NO2। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਬੇਟਾ 2। So it comes out to be 1/4 multiplied by 2। Answer is 1/2 mole per liter per second। Now next part is rate of disappearance of N2O5, rate of disappearance of N2O5। इनके लिए आप एक्सप्रेशन लिख सकते हैं डेल्टा N2O5 अपॉन डेल्टा T। अच्छा जी बेटा जे आप रेट ऑफ रिएक्शन नू N2O5 के टर्म च लिखिए तो अपने को ले माइनस का साइन आएगा, स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट डिविजिबल बनेगा N2O5 अपॉन डेल्टा T। दिस वी आर टू फाइंड आउट, आप ये चीज फाइंड आउट करनी है। रेट ऑफ रिएक्शन असी कट चुके हैं, दिस थिंग इज इक्वल टू 1/2। सो 1/2 इज इक्वल टू माइनस 1/2 रेट ऑफ डिसअपीयरेंस, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ N2O5। A2 ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇੱਧਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ बेटा, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ N2O5 कितनी वैल्यू आ जाएगी, इनका आंसर आ जाएगा 1 मोल पर लीटर पर सेकंड। बेटा इस हिसाब दे नाल इस तरीके दे ही न्यूमेरिकल्स ਤੁਹਾਨੂੰ पेपर 'ਚ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣਗੇ। ਆਪਾਂ सिर्फ 2 ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ है। एक ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ रेट ऑफ रिएक्शन ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਾਂ चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन अपॉन चेंज इन टाइम दे अगे स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट दे नाल ਆਪਾਂ डिवाइड करना है। तो जो रेट ऑफ अपीयरेंस या डिसअपीयरेंस है उदों स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट भी नहीं लेना ते ना ही आप प्लस या माइनस का साइन लेना है। सो आई होप तुहानू ये पूरा वीडियो अच्छी तरीके नाल समझ आया होगा जो अज आप लैक्चर किया है। इहदे ते बेस्ड तुसी होर क्वेश्चंस ट्राई करो, डिफरेंट बुक्स च दिते हुए है। NCERT दे न्यूमेरिकल्स भी जरूर सॉल्व करो। Thank you very much.